Good evening, friends. Sri Raghu Hariji Dalmia, philanthropist and nationalist, ex-president Dalmia Cement Bharat Limited, colleagues at Calcutta Chamber of Commerce, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is my honor and privilege. It is my honor and privilege. माइक ऑन है अभी भी एडमिन अनम्यूट करो सबको थैंक यू It is my honor and privilege to welcome you all at this special session of Chamber न्याय और स्वधर्म से राष्ट्र निर्माण. I warmly welcome Sri Raghu Hari Dalmia, philanthropist and nationalist and ex-president Dalmia Cement Bharat Limited, who has kindly accepted our invitation to grace today's session. Sir, we are greatly honored to have you with us today. For the sake of guests, I wish to say that the Calcutta Chamber of Commerce, currently in its 189th year, is not only the oldest chamber in India, but in entire Asia. The chamber has been in the forefront of serving industry and trade. The chamber, while encouraging excellence in different fields of human endeavor, also promotes debates on the issues pertaining to civil society. Dalmia Saab is a BTech 1967-72 batch in mechanical engineering from prestigious Indian Institute of Technology, Delhi, hails from one of the prominent business families of the country and leads a number of companies with diversified interests, including cement, industrial ceramics, and mechanical engineering. He has held leadership positions in various Indian business associations and is a trustee of various trusts in Chirawa region of Rajasthan. These trusts promote education, water conservation, and village development activities. Ramkrishna Jayadayal Dalmia Seva Sansthan, which was established in the year 2004 at Chirawa in Jhunjhunu district of Rajasthan, is one of these trusts. RJDSS, it's currently working with 80,000 people across 55 villages with a vision to bring Khushhali with equity, harmony, and prosperity in the region. These areas of interventions includes drinking water, agriculture and livestock, health, education, sustainable use of natural resources, women's empowerment, youth development, and addressing various social issues. Sri Dalmia is also involved in the school run by the family in various parts of the country. These schools endeavor to uplift the quality of education available to the children from the towns and villages. He takes interactive session with students in various parts of the country on a basic theme of building our great nation through character building, through justice, self-righteousness, and right attitudes. He conducts programs with teachers to help them teach the theme of students. Nyay or Swadharm se Rashtra Nirman is the basic theme of these programs. Sri Dalmia received the award for outstanding contribution, national development by IIT Delhi Aluminium Association in the year 2017 and Bhumiputra Award by A1 TV Rajasthan in the year 2018. National building is a multinational concept and is involved with active participation of its citizens in various walks of life. A strong and powerful nation is built on dedication and hard work of its citizens. There are various facets of nation building, amongst which the most important one seems to be tapping of potential of its human resources, reducing the social and economic disparity that exists in the society, and creating an enabling environment wherein individuals can live freely and attain their best in life. Democracy is not only in political doctrine, but a social doctrine also. Democracy is probably the best way to initiate nation building in every multicultural,
multi-ethnic and multilingual state. In India, most people today are healthier, live longer, are more educated, and have more access to goods and services. There has been progress not only in improving health and education and raising income, but also in expanding people's power to select leaders, influence public decisions, and share knowledge. Yet not all sides of the story are positive. New vulnerability is required innovative public policies to confront risk and inequalities while harnessing dynamic market forces for the benefit of all. With these words, I now request Sri Raghu Hariji Dalmia to enlighten us on problems, challenges, and difficulties India is facing and experiencing in the process of nation building. Once again, I hearty welcome to you all. Thank you. Dalmia ji, Chacha ji, Raghuvari ji Dalmia, please. Kindly enlighten us, sir. माधव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आदरणीय माधव जी कलकत्ता चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट, आदरणीय राजीव महेश्वरी जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, आज के जो टॉपिक है डिस्कशन का, न्याय और स्वधर्म से राष्ट्र निर्माण। मेरा देश मेरी जिम्मेदारी, ये जो छोटा सा स्लोगन है ये ही बहुत इम्पोर्टेंट है और इसी की थीम के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूं। न्याय और स्वधर्म से राष्ट्र निर्माण। राष्ट्र निर्माण के बेसिकली 3 पहलू हैं। आई होप एवरीबडी इज एबल टू सी माई स्क्रीन, जो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। यस सर। Yes, sir. ओके, तो यस सर। राष्ट्र निर्माण के 3 पहलू हैं। पहला इकोनॉमिक, दूसरा कल्चरल, स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिक, और तीसरा सोशल। राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी 3 एंटिटीज के ऊपर है। पहला सरकार, दूसरा सोसाइटी और कॉरपोरेट, और तीसरा हर इंडिविजुअल, हमारे देश का जो नागरिक है, हर इंडिविजुअल। हर व्यक्ति जो यहाँ पे रहता है वो देश के प्रति प्राउड फील करता है। हर व्यक्ति जो एक्शन लेता है वो हमेशा देश के प्रति एक्शन लेता है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि अनकॉन्शियसली कोई ऐसा एक्शन हो जाता है जो सेल्फिशनेस की तरफ चला जाता है, और उसके बाद वो एक्शन जो है वो देश के प्रति डेट्रीमेंटल होता है। हम लोगों को कॉन्शियस होना पड़ेगा कि हम जो भी एक्शन लें वो देश की तरफ एक रिस्पॉन्सिबल एक्शन लो, नॉट इन वर्ड्स बट इन डीड्स। अभी मैं पहले कुछ बातें एक इंडिविजुअल के लिए करूंगा, स्वधर्म की बात करूंगा, वहां से न्याय के ऊपर आऊंगा, और उसके बाद हम कॉर्पोरेट इसके लिए क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात करूंगा। आया। हम जब किसी व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो उसके जो ट्रेड्स हम मेजर करते हैं, उसको जो एसेस करते हैं इंटरव्यू में या टेस्ट में, उसमें कुछ ट्रेड्स होते हैं, उसमें कुछ नॉलेज होती है, कुछ स्किल होती है, कुछ एटीट्यूड्स होते हैं। लेकिन अगर हम सब ट्रेड्स को लिस्ट करें तो हम देखेंगे कि 90% ट्रेड्स जो हैं वो एटीट्यूड के होते हैं। बहुत कम ट्रेड्स होते हैं जो नॉलेज या स्किल बेस्ड होते हैं।
वही ट्रेड्स, वो हम क्यों ट्रेड्स करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं हर इंडिविजुअल जो हो वो कंपनी के प्रति जिम्मेदार हो, कंपनी के प्रति लॉयल हो, कंपनी के प्रति रेस्पेक्टफुल हो। यही चीज हम लोगों के लिए वैलिड होती है अगर हम देश के प्रति बात करें। वो बेसिकली हम 5 एटीट्यूड्स होते हैं। एथिक्स है, इंटीग्रिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, respect for laws and regulations, respect for rights of citizens. These are, I don't need to explain about them. These are very simple to understand. हमको एक चीज समझनी पड़ेगी, अगर हम विदेश की बात करते हैं, हम यूरोप की बात करते हैं या जापान की बात करते हैं या सिंगापुर की बात करते हैं, हम चाहते हैं हमारा भारत देश उस तरह का देश बने, परंतु हम ये नहीं देखते हैं कि वहां के लोगों का क्या एटीट्यूड है, क्या कैरेक्टर है, और हमारे लोगों का क्या एटीट्यूड है, क्या कैरेक्टर है। हमारे सारे एक्शंस, मोस्टली एक्शंस स्वार्थ की तरफ जाते हैं। वहां पे सारे के सारे एक्शंस पहले जिम्मेदारी की तरफ जाते हैं, उसके बाद स्वार्थ की तरफ जाते हैं। और वो बनने के लिए हमको ये ट्रेड्स, ये एटीट्यूड्स हमको डेवलप करने पड़ेंगे। एक हम देश की बात करते हैं तो हम एक करप्शन जो है वो हमारे देश में बहुत बड़ी बुराई है। आयन रैंड का स्टेटमेंट है, when you see that trading is done not by consent but by compulsion, when you see that in order to produce you need to obtain permission from men who produce nothing, when you see that money is flowing to those who deal not in goods but in favors, when you see that men get richer by graft and by pull not than by work, and your laws don't protect you against them but protect them against you, when you see that corruption is being rewarded and honesty is becoming a self-sacrifice, you may know that your society is doomed. Unfortunately, हमारा देश इसके कगार पर खड़ा है, और ये सारी की सारी चीज आती है क्योंकि स्वार्थ। हम हर व्यक्ति को एक छोटा सा काम अगर गवर्नमेंट के पास जाके करना पड़ता है तो उसके लिए सही भी है, वो हमारा राइट है, उसके बावजूद हमको उसके लिए उसको पैसा देना पड़ता है, ब्राइब करनी पड़ती है, तब वो जाके हमारा काम करता है। एक दलाई लामा का स्टेटमेंट है, रॉन्ग इज रॉन्ग even if everyone is doing it, right is right even if no one is doing it. तो हम अगर निस्वार्थ की बात करेंगे, हम अगर देश के प्रति जागरूक होने की बात करेंगे, अगर हम देश के प्रति हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की बात करेंगे, अगर हम देश के प्रति अपना धर्म निभाने की बात करेंगे, तो हमको इसको देखना पड़ेगा सही क्या है, गलत क्या है। हम ये नहीं सोच सकते हैं कि अगर दुनिया कर रही है तो वही सही है और ये तो कोई भी नहीं कर रहा है तो ये गलत है। इस चीज के बारे में अगर हम विचार करेंगे तो नेसेसरीली हम राइट का ख्याल करेंगे, रॉन्ग का ख्याल नहीं करेंगे। राइट की बात करेंगे तो न्याय होगा, रॉन्ग की बात करेंगे तो अन्याय होगा। न्याय डीलिंग्स में, एनीवेयर एवरीवेयर। न्याय हमारे बिहेवियर में, courteous towards all fellow citizens। आपको एक कहानी में इसके पहले सुनाता हूं। जब हम दलाई लामा की बात कर रहे थे, हमारे प्रिंसिपल, मैं जब स्कूल में पढ़ता था, एमएन कपूर साहब हमारे प्रिंसिपल थे। तो उस जमाने में, और आज भी होता होगा, इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मैचेस होते हैं। उस जमाने में हमारे स्पोर्ट्स मैचेस उम्र के हिसाब से होते थे, अंडर 16, ओवर 16। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारी स्कूल की टीम अंडर 16 में ट्रॉफी जीत के लाई। ऑब्वियसली सब लोग खुश थे। हाउएवर इट सो हैपेंड कि उसमें एक लड़का 16 बरस से कुछ हफ्ते ऊपर चला गया था। सच्चाई ये है कि जब वो टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो वो लड़का 16 साल से नीचे था। बाय द टाइम द टूर्नामेंट गॉट ओवर, वो 16 साल से ऊपर चला गया। कपूर साहब ने कह दिया
हम लोग ये टूर्नामेंट गलती से जीते हैं, फ्रॉड से जीते हैं, अन्याय से जीते हैं। ये ट्रॉफी हम डिजर्व नहीं करते हैं। उन्होंने वो ट्रॉफी वापस कर दी। उस जमाने में तो हम लोगों को सबको बहुत खराब लगा, लेकिन बाद में, आज 50 साल से ऊपर हो गया है, आज भी मैं ये इंसिडेंट याद करके मैं सोचता हूँ हमको हमारे प्रिंसिपल ने कितनी बड़ी सीख दी कि हमारी जो अचीवमेंट है, हमको जो जीतना है, वो हम न्याय से जीतें, अन्याय से ना जीतें। वही हमारी बात है, जस्टिस इन डीलिंग्स एनीवेयर एवरीवेयर, जस्टिस इन बिहेवियर, courteous towards all fellow citizens। आपको दो सच्ची घटनाएं और सुनाता हूं, एक मेरे ताऊजी की और मेरे खुद का एक्सपीरियंस। मेरे ताऊजी रामकृष्ण डालमिया जी, आज तो वो इस दुनिया में नहीं है। रामकृष्ण डालमिया जी जब फैक्ट्री विजिट किया करते थे तो उनकी हैबिट थी, कभी कभी रात को वो फैक्ट्री में घूमने चले जाया करते थे। एक बार वो फैक्ट्री में जाने के लिए जब गए तो गेट के ऊपर एक चौकीदार ने रोक दिया। चौकीदार नया था, उनको पहचानता नहीं था। ताऊजी ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि मैं हूं यहाँ का मालिक रामकृष्ण डालमिया। चौकीदार ने हाथ जोड़ लिया, मना कर दिया, सर मैं आपको नहीं पहचानता हूँ, माफ कीजिएगा, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। मेरे ताऊजी उस समय नाराज नहीं हुए। अगले दिन ऑफिस में उन्होंने उस चौकीदार को बुलाया। चौकीदार को बुला के उसको रिवार्ड दिया। इसलिए रिवार्ड दिया कि तुम घबराए नहीं, तुम छोटे तबके के होने के बावजूद तुमने ये नहीं सोचा कि मालिक मेरे सामने खड़ा है उसको, लेकिन तुम पहचानते नहीं हो, तुमने अंदर नहीं जाने दिया, तुमने बहुत अच्छा काम किया, ऐसे ही अपना आगे की ड्यूटी निभाते रहना, ये तुम्हारे लिए रिवार्ड है। दूसरा मेरा खुद का, मैं छोटा था, 10 बरस का होऊंगा या 12 बरस का होऊंगा। हमारे घर के पास एक बंगाली मार्केट हुआ करता था, आज भी एग्जिस्ट करता है। पारस ब्रदर्स की एक दुकान हुआ करती थी। आज पता नहीं शायद वो दुकान एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। मैं सुबह सुबह उस दुकान में, मुझे कुछ सामान खरीदना था, मैं सुबह सुबह उस दुकान में गया। दुकान खुली खुली थी, झाड़ू लग रहा था। वहां का जो नौकर झाड़ू लगा रहा था, गलती से उसका झाड़ू मेरे पांव पे चढ़ गया। मेरा पारा 7वें आसमान पर। 10 बरस का लड़का या 12 बरस का होऊंगा, बॉर्न विद सिल्वर स्पून, शायद उस वजह से मेरे मन में अहंकार रहा होगा। मेरा पारा 7वें आसमान पे चढ़ गया। मैंने उस नौकर को डांट दिया, वो बेचारा चुप के पीछे की तरफ चला गया। मैंने मेरा सामान लिया। जैसे ही मैं सामान लेके वापस मुड़ा, उस दुकान के ओनर ने मुझे बुलाया, बच्चे सुन। मैंने कहा हाँ जी बोलिए। वो एक बात बोले ये जो झाड़ू तेरे पांव में लग गया, ये उसने जान के लगाया कि गलती से लग गया। उस समय तो मुझे गुस्सा था, मैंने तुनक के कह दिया कि जैसे भी लगाया गलत तो हुआ। उस आदमी ने मुझे आगे कुछ नहीं बोला, मैं चला आया। कुछ समय बाद ये जो इंसिडेंट है मेरे मन में बहुत घर कर गया, मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया, और उसकी वजह से मैं, मेरे जितने भी ऑफिस में एम्प्लॉयज हुआ करते हैं या मेरे घर में एम्प्लॉयज हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि उनके साथ प्यार से बात करूं, कर्टसी से बात करूं। अगर कोई चीज के लिए गुस्सा भी करना है तो आधे मिनट का गुस्सा करके बंद कर दूं। और ये मैंने उस एक्सपीरियंस से सीखा जो मैंने एक गलत काम कर दिया था। हम ये जो सही है और ये जो गलत है, हम इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? कई दफा मन में बहुत एक कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं या मैं जो कर रहा हूं वो गलत कर रहा हूं। दिवाली पे हम लोग पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद एक कॉपी के ऊपर हम लोग एक साथिया बनाते हैं। साथिया बना के उस पर लिखते हैं शुभ लाभ, और फिर उसकी पूजा करते हैं। वो हम पूजा क्यों करते हैं, उसका मेन पर्पस है
कि मेरा जो प्रॉफिट हो वो शुभ हो, मेरे प्रॉफिट में कहीं भी कोई गलत चीज ना आ जाए, और वो जो प्रॉफिट उसके बाद हम लिखने के बाद हम भूल जाते हैं, हम अपने काम में लग जाते हैं, फिर अपने तौर तरीकों में उसी तरह से हम करते रहते हैं। परंतु अगर हम इसको करना चाहें, हम अपनी विचारधारा को ठीक करें, शुभ विचार, शुभ कर्म, शुभ लाभ, अगर हमारी विचारधारा सही रहेगी, हमारा कर्म नेसेसरली सही रहेगा, तो हमारा लाभ जो है वो नेसेसरली सही रहेगा। लाइफ इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर थॉट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। लाइफ इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर थॉट्स, जो हम सोचेंगे वही हम करेंगे, वही हमारा उसका हमको जवाब मिलेगा। जेआरडी टाटा का स्टेटमेंट है। अब मैं कॉर्पोरेट की तरफ आता हूं। In a poor country like ours, in which so many people are economically deprived, the social obligations of organized business must go beyond the accepted duties of making a good product, selling it at a fair price, paying fair wages, providing good working conditions to labor, and paying taxes in full. अगला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। In a free enterprise, citizen is not just another stakeholder in business, but is in fact the very purpose of its existence. हमको ध्यान रखना चाहिए, हम जो भी बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट इज ए मोटिव, बट इट मस्ट नॉट बिकम द सोल मोटिव। उसका जो सोसाइटी पे इम्पैक्ट है, हमारे डिसीजंस का, जो हम जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट आता है, उसका जो सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट है, वो उस इम्पैक्ट का क्या होगा। मैं आपको दो और छोटे छोटे इंसिडेंट सुनाता हूं। जीडी बिरला, सबने नाम सुना हुआ है उनका। वो एक बार शाम को अपने घर में बैठे हुए थे, तो उनका पोता आया। उनके पोते ने एक सूट लेंथ दिखाई और उन्होंने सूट लेंथ में लिखा, तो सूट लेंथ में बताया, थोड़ा मारवाड़ी में बोलूंगा, समझ में आएगा, मुश्किल नहीं है, पर कहानी थोड़ी सी इजी हो जाएगी बताने में। वो बोला, दादाजी को काको जी बोला करते हैं वो लोग, तो बोला, काको जी ये सूट लेंथ में लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, हाँ ये लोग, ये एक एक सूट लेंथ 3-3 लाख की है, और इनमें मारो बहुत चोखो प्रॉफिट होगा। जीडी बिरला जी ने पूछा, भाया कितनी सूट लेंथ बेच ले वो साल में? उनका पोता बोला, काको जी 1000 में तो बेच ही लेवांगा। जीडी बिरला जी ने छोटा सा मुंह करके बोला, चोखो। उनके पोते को पता, आइडिया लगा कि शायद काको जी खुश नहीं है। उन्होंने पूछा, काको जी क्या हो थे, खुश को नहीं? जीडी बिरला जी का जवाब था, भाया तू तो 3-3 लाख की सूट लेंथ बेच के बहुत प्रॉफिट कमा ले होगो, पर सोच वो मिडिल क्लास वाला आदमी जी की छोरी ब्याई जाओगी, वो बटे जब लड़का वाला 3-3 लाख की सूट लेंथ दहेज में डिमांड करेगा, तो वो मिडिल क्लास को आदमी उनको के हुआ गो। सिटीजन, सोसाइटी, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा हमारे प्रॉफिट्स का, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी कहानी सुनाता हूं, सुमत मुलगांवकर की। ही वॉज द चीफ ऑफ टेल्को। ट्रक्स बनाते थे वहां पे, अभी भी बनती हैं ऑफ कोर्स। उस जमाने में जो गियर बॉक्स हुआ करता था, वो नॉन सिंक्रोनस गियर बॉक्स हुआ करता था। नॉन सिंक्रोनस गियर बॉक्स की वजह से ड्राइवर को गाड़ी चलाने में बहुत तकलीफ होती है। जो स्टीयरिंग होता है वो बहुत हार्ड होता है, उसको बहुत हार्ड तरीके से वो घूमता है, तो आदमी थक जाता है। सुमत मुलगांवकर बोले कि हमको हमारे ट्रक्स में सिंक्रोनस गियर बॉक्स डालना जरूरी है, जिसकी वजह से उस ड्राइवर को तकलीफ ना हो। उनके जितने भी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स थे, उन्होंने कहा, सर सिंक्रोनस गियर बॉक्स हमको इंपोर्ट करेंगे तो महंगा बहुत पड़ेगा, और हम इसकी वजह से टाटा ट्रक का दाम नहीं बढ़ा सकते हैं।
तो इसमें हमारे प्रॉफिट का लॉस बहुत हो जाएगा। सुमंत मुलगांवकर का एक ही जवाब था, मेरे लिए मेरे कस्टमर ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हमको जो प्रॉफिट कमाना है वो हमारी एफिशिएंसी से कमाना है, हमारे बेटर मैनेजमेंट से कमाना है। हमको हमारे जो कस्टमर हैं उनको अच्छा प्रोडक्ट देना है एट वॉट एवर कॉस्ट। अगेन, सिटीजन सोसाइटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मेकिंग प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स आर इम्पॉर्टेंट, बट उसका इम्पैक्ट हमारे सिटीजन्स पे, सोसाइटी पे क्या होगा वो जानना बहुत जरूरी है। अब मैं आपसे बात करता हूं हमारे इंडियन नैरेटिव की, जो हमारे देश की आज एक बहुत स्थिति खराब हो रखी है। सबसे पहले मैं देश के इतिहास की बात करता हूं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, या हमारे महाराष्ट्र राजस्थान से आसाम अरुणाचल तक, हमारा इतिहास इतना गर्व से भरा पड़ा है, इतनी गर्व की कहानियां भरी पड़ी हैं, परंतु जो हमको पढ़ाया जाता है वो है मुगल हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री, मुगलों के पहले जो मुस्लिम्स आए जिन्होंने हमको लूट के लेके चले गए, वो हिस्ट्री, जिसकी वजह से हमारे देश में या हम लोगों को एक दबे हुए व्यक्ति की फीलिंग होती है और हम एक दबा हुआ सिटीजन फील करते हैं। गर्व जो है वो हमारे इतिहास को जान के हम गर्व को भूल जाते हैं, हम गर्व हमारा नहीं है। अगर हम महाराणा प्रताप की बात करें, रानी झांसी की बात करें, शिवाजी की बात करें, पंजाब की हिस्ट्री की बात करें, महाराजा रंजीत सिंह की बात करें, गुरु गोबिंद सिंह जी की बात करें, गुरु तेग बहादुर जी की बात करें, ये तो नैरेटिव हमारे पास फिर भी छोटा छोटा अवेलेबल है, लेकिन हमको पढ़ाया नहीं जाता है। परंतु इसके अलावा अहोम डायनेस्टी, डोगरा डायनेस्टी, साउथ में चले जाएं तो मार्तंड वर्मा, इधर उड़ीसा में आ जाएं तो क्या नाम है उस, हाँ, बिरसा मुंडा। ये हमारे जो हैं ये नैरेटिव्स हम सीख नहीं सकते हैं, हमारे के बच्चों को कहीं पढ़ाए नहीं जाते हैं, हम कहीं जानते नहीं हैं। इन नैरेटिव्स को हमको निकाल के बाहर लाना पड़ेगा। इन नैरेटिव्स को हमको पुस्तक के फॉर्म में, हम टेक्स्ट बुक, हमारी वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम टेक्स्ट बुक को चेंज कर सकें, परंतु हम ऐसी किताबें छपवा सकते हैं, हम उनको बंटवा सकते हैं, जिससे कि लोगों को स्कूल में, कॉलेजेस में इसकी रियल नॉलेज मिले। क्या कोई कह सकता है, किसी को मालूम है अंगकार एंकोर वेट जो एक बहुत बड़ा मंदिर है कंबोडिया में, वो तमिल किंग्स ने बनवाया था? मेरे को भी नहीं मालूम था, मुझे आज मालूम चला जब मैंने एक सदगुरु का वीडियो देखा। पैलेस्टीन में एक मंदिर है जो इंडियंस ने बनवाया, इंडियंस लेबर गए वहां पे, इंडियन किंग्स ने बनवाया, वो भी मुझे नहीं मालूम था। मुझे नहीं मालूम था, किसी को नहीं मालूम है। ये अगर हम पता करें, इसको नैरेटिव को हम क्रिएट करें, इकट्ठा करके हम उसको बढ़ाएं, दूसरों को पहुंचाएं, तो हम एक ट्रू इतिहास का नैरेटिव क्रिएट कर सकते हैं। एक आज नैरेटिव चल रहा है आर्यन इन्वेजन थ्योरी। हमारे इतिहास में हमको यही पढ़ाया जाता है कि आर्यंस बाहर से आए, उन्होंने या तो माइग्रेट किया या इन्वेड किया, और जितने भी लोग हिंदुस्तान के थे उन सबको साउथ में खदेड़ दिया। साउथ वाले हो गए द्रविड़, नॉर्थ वाले हो गए आर्यन, और नॉर्थ वाले हो गए सुपीरियर, साउथ वाले हो गए इंफीरियर। अगर हम ये, इसकी भी रिसर्च हो चुकी है, नॉर्थ और साउथ वालों को अगर हम डीएनए टेस्ट करें, दे आर ऑल द सेम। और एक रिसर्च नहीं है, इसके ऊपर कई रिसर्च हो चुकी है, इनके डीएनए सेम है, विच मीन्स
देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो आर्यंस, देयर इज नो द्रविड़। हम लोग शुरू से हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, नॉर्थ में रहने वाले हैं, साउथ में रहने वाले हैं, परंतु हम सारे के सारे एक हैं, अलग अलग नहीं है। ये जो अलगाववाद क्रिएट किया ब्रिटिशर्स ने, यूरोपियंस ने, उसकी वजह से साउथ में हीन भावना क्रिएट करके ये कन्वर्जन्स का जो चक्कर शुरू हो गया, ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत खराब है। अब मैं आपको बात करता हूं हमारे साइंटिफिक, हमारे जो लिटरेचर अवेलेबल हैं उसमें जो बहुत वास्ट नॉलेज भरी हुई है। हमारे संस्कृत के लिटरेचर और हमारे तमिल के लिटरेचर, इसमें बहुत वास्ट नॉलेज भरी पड़ी है। साइंटिफिक नॉलेज, मेडिकल नॉलेज और एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज, बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, परंतु इसको रिसर्च करके उभार के लाने वाला कोई नहीं है। ये जो एंशिएंट नॉलेज है, अगर हम इसको उभार के ला सके, संस्कृत पढ़ना इसके लिए बहुत जरूरी होगा। अगर हम इसको उभार के ला सके, और संस्कृत का स्कॉलर्स हमको BHU में मिल जाएंगे और श्रद्धानंद विद्यालय जो बनारस में है उसमें मिल जाएंगे। तमिल की जो नॉलेज है वो तमिल के स्कॉलर्स हमको तमिलनाडु में मिल जाएंगे। बहुत स्कॉलर्स मिल जाएंगे हमको काम करने के लिए, उनको स्पॉन्सर्स चाहिए। ये जो हमारी एंशिएंट नॉलेज है, इसको लाने के लिए हम जो गिफ्टेड स्कॉलर्स हैं उनको हम स्पॉन्सर करें, उनसे हम रिसर्च करवाएं, रिसर्च करवा के उन रिसर्च पेपर्स को पब्लिश करें। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड इस नॉलेज को हम प्रोपगेट करें। इसलिए प्रोपगेट करें क्योंकि आज के जो सो कॉल्ड नॉलेज वाले लोग हैं, हिस्टोरियंस जो लोग हैं, वो इन सब को आगे नहीं आने देंगे, और वो आगे लेके आना वो हम लोगों की जिम्मेदारी है। अगली चीज क्या है? वीकेस्ट लिंक इन इंडिया, हमारे गांव, हमारा मैन ऑन द स्ट्रीट। हमारे जो गांव हैं, फार्मर्स, दे ब्रिंग फूड ऑन आवर टेबल, परंतु वो गरीब से गरीब हैं। उनकी आमदनी साल में थाउजेंड्स में है, लाखों में नहीं है। हम ये जिम्मेदारी हमको उठानी चाहिए कि हम उनको, उन फार्मर्स के प्रोड्यूस को वैल्यू एडिशन करके हम अच्छे मार्केट्स में, जो बड़े बड़े मार्केट्स हैं, उन मार्केट्स में हम उनको कैसे ला सकते हैं। वहां की जो लोकल आर्ट है, कल्चर है, जो खत्म हो गया है, वहां का जो पुराना पुराना कुटीर उद्योग है, वो जो खत्म हो गया है, उसको हम कैसे रिवाइव कर सकते हैं। उस रिवाइवल को करके हम उसको मार्केट कैसे कर सकते हैं, जिससे उसकी सारी की सारी आमदनी हमारे फार्मर्स को, हमारे विलेजर्स को मिले। ये अगर हमारे फार्मर्स को, विलेजर्स को मिलेगा तो वहां से माइग्रेशन बंद हो जाएगा। हमारे फार्मर्स के जो बच्चे आज फार्मिंग नहीं करना चाहते हैं, वो फार्मिंग में एज ए वर्क जुट जाएंगे। ये वर्क अगर हम कर सके तो हमारे विलेजेस का बहुत बड़ा उद्धार हो जाएगा। दे आर ए पार्ट ऑफ अस, और उनकी जिम्मेदारी हमारी है। हमारी फैक्ट्रीज हैं चारों तरफ, उन फैक्ट्रीज के चारों तरफ गांव हैं, 100 गांव, 150 गांव। हम उनको एडॉप्ट क्यों नहीं कर लें? एडॉप्ट करके उनके इस तरह का काम, इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ द पीपल, हम इस तरह का काम अगर हम कर सकते हैं। दूसरा हमारा वीक लिंक है मैन ऑन द स्ट्रीट। मैन ऑन द स्ट्रीट जो है, उसकी डिग्निटी बिल्कुल खत्म हो गई है। हाउ कैन वी इम्प्रूव द डिग्निटी ऑफ दैट मैन? उसकी एस्टीम हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? मैंने देखा है, जूठा खाना अगर हमने छोड़ दिया, वो उस जूठे पत्ते को उठा के चाट लेता है। ऐसा व्यक्ति, उसको हम खाना कैसे दे सकते हैं? उसको हम शेल्टर कैसे दे सकते हैं? उसको हम हेल्थ का कुछ कर सकते हैं क्या? उसको हम छोटा सा एजुकेशन का कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं क्या? उसके लिए हम कोई बहुत छोटा सा उद्योग उसको हेल्प कर सकते हैं क्या उसको कराने में, जिससे उसकी, वो ही डज नॉट नीड इनकम इन लैक्स,
he needs income in thousands. उसको वो हजारों की इनकम हम क्रिएट करवा सकते हैं क्या? तीसरा हमारा वीक लिंक है आज हमारा, मैंने इसमें अनफॉर्चुनेटली इसमें स्लाइड में डालना भूल गया, हमारा जो एक विंग है वो हमारा एजुकेशन सिस्टम। हमारे एजुकेशन सिस्टम में करोड़ों लोग हर साल पास आउट होते हैं, बट अगर हम सबको इंटरव्यू करें तो हम देखते हैं मोस्ट पीपल आर अनएम्प्लॉयबल, मोस्ट पीपल आर अनएम्प्लॉयबल। ये स्थिति जो हमारे देश की है उसकी जिम्मेदार सरकार को जिम्मेदारी हम हर चीज के लिए ना दें, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? हम अपने many of our corporates have their schools, some of them even have their universities, colleges. वहां पे हम इस चीज को कैसे प्रोपोगेट कर सकते हैं? बेटर इंफॉर्मेशन, बेटर नॉलेज, उनको जो हमको खड़ा करना है, दे हैव टू बी यूजफुल पीपल, स्कॉलर्स रादर देन जस्ट रन ऑफ द मिल ग्रेजुएट्स। कॉलेजेस के अंदर अनफॉर्चुनेटली, और अच्छे अच्छे कॉलेजेस के अंदर, आई एम इवन टॉकिंग अबाउट IITs, यूनिवर्सिटीज, अच्छे अच्छे कॉलेजेस के अंदर अर्बन नक्सल्स ने बहुत बड़ा प्रभाव कर लिया है। ये अर्बन नक्सल्स जो ये हैं, ये हमारे देश को तोड़ रहे हैं। इनसे हम कैसे खत्म हो सकते हैं? कम से कम हम जो अपने कॉलेजेस हैं उसमें तो इंश्योर करें कि वी डू नॉट अलाउ सच पीपल टू बिकम ए पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, आवर एसोसिएशन, आवर कॉलेज, आवर यूनिवर्सिटी, इवन इन आवर स्कूल, कि वो अर्बन नक्सलिज्म को बढ़ावा देवें और उसकी तरफ स्टूडेंट्स को डायरेक्शन देवें। इट इज वेरी, एक चीज आपको और बोलता हूं, कैपिटलिज्म क्या है? ओके, बिफोर दैट लेट मी जस्ट कम बैक टू रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। रिसोर्सेज हो गए हमारी हवा, पानी, जमीन, इन सब को हम गंदा कर रहे हैं। हमको, हमारी जिम्मेदारी है इनको साफ करना, साफ रखना। We can consume them, but we cannot waste them. This is nation, this is not us. हम resources को consume कर सकते हैं, waste नहीं कर सकते हैं। हम resources को consume कर सकते हैं, pollute नहीं कर सकते हैं। हमारे ये देश का true heritage है, ये हमारे देश की true national identity है। कैपिटलिज्म क्या है? कैपिटलिज्म इज समथिंग विच इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। कैपिटलिज्म इज ऑल्सो ग्रीड, करप्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन। हमारी चॉइस है हम कौन से कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करना चाहते हैं। आई एम श्योर सब लोग ये चाहेंगे, माई कैपिटलिज्म शुड बी इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। एक JRD टाटा का स्टेटमेंट है, अगेन मैं JRD टाटा की बात करता हूं, इट इज नॉट द इकोनॉमी अलोन दैट विल एडवांस आवर नेशन, इट इज ऑल्सो द एटीट्यूड, कैरेक्टर, कंपैशन, हेरिटेज विच विल क्रिएट आवर ट्रू नेशनल आइडेंटिटी एंड हेल्प इन आवर ट्रू एडवांसमेंट। दोस्तों, देश को अपना बिजनेस पार्टनर बनाओ। 10%, 15%, आप जो चाहो उसको बनाओ। उस समय हमको टैक्स नहीं देखना है कि ये हमारा खर्चा टैक्स में अलाउड है कि ये हमारा खर्चा टैक्स में अलाउड नहीं है। हमको वो 10%, 15% खर्चा देश के हेरिटेज को, देश के नैरेटिव को, देश की ट्रू आइडेंटिटी को हमको उभार के लाने में उसको खर्चा करना है। आपको एक छोटा सा गाना सुनाता हूं, सबने सुना होगा, आई एम जस्ट रिपीटिंग इट फॉर एवरीवन। अखंड भारत के लिए जीवन समर्पित है मेरा। जो देश को चाहते हैं वो और कुछ नहीं चाहते।
मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगी। नहीं मिटने दूंगा ये देश, नहीं मिटने दूंगा ये देश, नहीं झुकने दूंगा। ये जो गाना है, ये जितना भी मैंने कहा, और आई एम श्योर आपकी भी थॉट्स वही हैं, हमको देश ना तो मिटने देना है ना झुकने देना है। हमारा हेरिटेज, हमारा राष्ट्र जो निर्माण है वो यहीं से होगा। मेजर गौरव आर्या का सबने नाम सुना होगा। नेशन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्लैग मस्ट नेवर बी compromised. It's very simple to understand. I don't need to explain it. दोस्तों, हमें जान नहीं देनी है, लेकिन देश को हमें अपनी जिंदगी देनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अपनी जिंदगी देनी है। हम अपने देश के लिए, हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए हम क्या लेगेसी छोड़ के जा सकते हैं? A better India than what we inherited. हम जब वसीयत की बात करते हैं, हम अपने अगली जनरेशन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अगर हमको अपने बाप दादा से 100 रुपए मिला था तो हम कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों के लिए उसको 200, 300, 400, 500 करके उनको दे के जाएं। हम हमारे देश के लिए, हमारी अगली जनरेशन के लिए क्या विरासत छोड़ के जाना चाहते हैं? A worse India than what we inherited, or a better India than what we inherited? What will matter is not your success, but your significance. Not what you learned, but what you taught. What will matter is every act of integrity, compassion, or sacrifice that enriched, empowered, or encouraged others to emulate you. What will matter is not your competence, but your character. Not how many people you knew, but how many people will feel a lasting loss when you are gone. What will matter is how long you will be remembered, by whom, and for what. Living a life that matters is not an accident, is not a matter of circumstance, but of choice. दोस्तों, circumstances नहीं, choice. We have to choose what kind of nation we want to build. The true heritage of India, the true identity of India. हम क्या विरासत छोड़ के जाने वाले हैं अपने आगे की जनरेशन के लिए? A better India, ये हमको अपने लिए, अपने मन में सोचना पड़ेगा। मेरे सपनों का भारत मेरी मुट्ठी में है। मेरा देश मेरी जिम्मेदारी है। दोस्तों, ये मेरा ईमेल एड्रेस है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आई विल बी हैप्पी अगर कोई मुझसे चैट करना चाहे मेरे ईमेल पे, और अगर यूट्यूब पे मेरे कई वीडियोस हैं ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, बेसिकली ऑन नेशन बिल्डिंग। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, और ईमेल पे अगर आप चैट करना चाहें मेरे साथ चैट कीजिए। जय हिंद दोस्तों, मेरा देश मेरी जिम्मेदारी। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. सर Thank you, sir. के विचार Thank you so के Thank you, Thank you, sir. Thank you, sir. धन्यवाद सर। Thank you, sir. Thank you, sir. पूछना हो, Thank you, sir. जानना Thank you, हो, sir. मैं रिक्वेस्ट करूंगा। Thank you, sir. Thank you, sir. नारायण जी जैन हमारे मित्र साथ सामने है। नारायण जी हैं क्या? आप लॉग आउट कर गए? कुछ पूछना चाहेंगे? आई एम हियर। कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, मेरे को बोलना है। अरे परम आदरणीय रघु हरि डालमिया जी, हमारा तो आपके परिवार से ताऊजी से सबसे संपर्क रहा है।
मेरे सबसे बड़े भाई साहब होते थे श्याम सुंदर जी जैन और सोपा जी श्याम सुंदर जी गोयनका। वो आपका सब काम वाम संभालते थे। और आपने जयदयाल जी गोयनका जो है मेरी माँ के मामा थे, आपने जो एक एक बात कही है, एक एक शब्द आपका अनुकरणीय है। और मैं और भाइयों को भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आपकी बात का अनुकरण करें। मैं मेरे लिए कहता हूं कि मैं अनुकरण करने की जीवन पर्यंत पूरी चेष्टा करूंगा और मैं आपसे संपर्क में रहूंगा। कलकत्ता चैम्बर को, माधव चरिका जी को बहुत धन्यवाद। मैं नारायण जी से सहमत हूं। हमारे पास्ट प्रेसिडेंट डालमिया जी हैं, के डालमिया, कृष्ण कुमार जी डालमिया जी हैं क्या आप? डालमिया जी हैं क्या? कुछ बोलना चाहेंगे साहब आप? डालमिया जी, के साहब। Wonderful session, no doubt. थैंक यू सर। हमारे एक मित्र राम मोहता जी भी हमारे साथ हैं, उनको अनम्यूट किया जाए। राम मोहता जी। राम भाई आप हैं क्या? राम भाई। हाँ बोल रहा हूँ, I'm unmute कर। हाँ सर, am I audible? यस सर। सर आज जो डालमिया जी ने जो आज हमको बातें बताई हैं, ये रियली इतनी अच्छी बातें हैं जो सिर्फ सुनना नहीं चाहिए हमको अपने जीवन में उतार के अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने हेरिटेज को ध्यान में रखते हुए, अपनी इफिशियंसी को ध्यान में रखते हुए और अपने को नेशनल बिल्डिंग की तरफ जरूर से जरूर काम करना चाहिए। आज जो इन्होंने बताया है इसको हम अनुकरण करने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। इसके लिए इन्होंने जो बातें बताई इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इनको साधु बात के पात्र। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मोहता साहब। थैंक यू जी। और कोई किसी को कुछ बोलना हो तो अपना चैट बॉक्स में नाम डाले, मैं उनको अनम्यूट करवा देता हूं। My name is Santosh Mathur. I'm an old class fellow of Raghu from school. Yes, sir. Yeah, I just want to say, why can't we inculcate and have these lectures for schools and schools? I think it will really benefit them. If we are able to have these sort of lectures in schools. मैं स्कूल में करता हूँ। मैं स्कूल में थोड़ा सा कंटेंट डिफरेंट होता है। मैं स्कूल्स और कॉलेजेस में इस सेशन को करता हूँ। वहाँ थोड़ा लॉन्गर भी होता है बिकॉज आई हैव टू शो अ लॉट ऑफ वीडियोस एंड आई हैव एन इंटरेक्टिव सेशन। तो मैं स्कूल के बच्चों से और स्कूल के कॉलेजेस के बच्चों से मैं करता हूँ। इनफैक्ट आई डू इट फ्रॉम क्लास 3 के बच्चों से मैं करता हूँ। I think these sort of values, if they are inculcated at the younger age, it will make a world of difference. Yeah. Thank you so much. माधव जी, मैं 1 मिनट बोलना चाहूंगा। बोलिए सर। डालमिया जी धन्यवाद, बहुत अच्छा बोले। इट वॉज वेरी इंस्पिरेशनल एज वेल एज इंफॉर्मेटिव। आपने एक उदाहरण दिया कि हम लोगों ने अपने बच्चों के लिए 100 रुपया के बदले 200, 300, 400 छोड़ना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से शायद आप आगे अपने कार्यक्रमों में इस पर ज्यादा जोर दें तो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। आज बच्चों में संस्कार जैसी चीज कोई नहीं रही। नेशन बिल्डिंग में जो बहुत जरूरी है, मैं आशा करता हूँ आप मेरी बात से सहमत होंगे, तो संस्कार को भी साथ में यदि जोड़ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और इट वाज वेरी सर, मैं नाइस। आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और असल में मैंने ये नहीं बोला कि हमको छोड़ना चाहिए, मैं बोला कि हम लोग छोड़ते हैं। मैं जोड़ने को बोला हूँ, संस्कार को हम लोग जोड़ने के लिए छोड़ते बोला हैं। और संस्कार की बात, जब मैं ये एटीट्यूड और न्याय और इसकी बातें कर रहा हूँ, ये सारे संस्कार की बातें हैं। और जब मैं बच्चों से बात करता हूँ तो मैं इस संस्कार के मैटर को थोड़ा और इलेबोरेट करके ही बात करता हूँ। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। डालमिया जी, हमारे यहाँ चैम्बर के जो मेंबर्स हैं वो कई स्कूलों से कलकत्ता में जुड़े हुए हैं। जी ये सर। जो सुझाव आए हैं ये हमारे सब मेंबर सुन रहे हैं और हम लोग ये चेष्टा करेंगे कि कलकत्ता चैम्बर के माध्यम से
हम इसको स्कूलों तक भी, आपका प्रोग्राम जो है स्कूलों के लिए, बच्चों के लिए जो आपने बना रखा है, जी उसको सर। हम स्कूलों में जोड़ना चाहें। कुछ स्कूल्स हैं जो मैं खुद भी देखता हूँ, हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी 2 स्कूल देखते हैं यहाँ पे अच्छे, राजीव माहेश्वरी जिनका अभी बात कर रहे, जिक्र कर रहे थे, वो भी देखते हैं। ये बहुत अच्छा लगा। हम लोग शहर वाले तो सिर्फ आने जाने और धंधे के अलावा कुछ समझ में नहीं आता है, क्या हम संस्कार है, क्या हमारे संस्कार आने वाले बच्चों में होने चाहिए। हम लोग चेष्टा, आपने जो भी आज हमें समझाया है, हम लोग पूरा चेष्टा करेंगे कि उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में हम उसको उतार सके जितना तक संभव हो। मैं आगे फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए हमारे वाइस प्रेसिडेंट, मैं इतना ही बोलूंगा कि मैं स्कूलों में जरूर आऊंगा और स्कूल के बच्चों के साथ प्रिफर करता हूँ फिजिकल बातचीत रादर देन ऑन जूम और समथिंग, क्योंकि फिजिकल में आप बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि मेरा ये पैशन है स्कूल के और कॉलेजेस के बच्चों के साथ बात करना। तो मैं जरूर आऊंगा, आप जब बोलेंगे मैं जरूर आऊंगा। जब कोविड का ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तब हम जरूर आपको चेष्टा करेंगे कि जिन जिन स्कूलों से हम लोग जुड़े हुए हैं, और यहाँ बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो मैं जानता हूँ कि वो स्कूलों से जुड़े हुए हैं, कलकत्ता में भी है और सब जगह है, हम लोग चेष्टा करेंगे। अभी तो हम लोग आगे का जो प्रोग्राम ले रखे हैं, सोमवार को हमारा प्रोग्राम है एक, जो कोविड के कारण से बच्चे ऑनलाइन स्टडी करने पर बाध्य हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। आने वाले टाइम पर जब भी स्कूल खुलेगा तो माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजेंगे, क्या उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी होनी चाहिए, इसके बारे में हमारा अगला प्रोग्राम सोमवार को है। तो अभी तो ये कोविड वाली सिचुएशन को हम लोग देख रहे हैं, पर जरूर है मैं आगे फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए अपने राजीव माहेश्वरी वाइस प्रेसिडेंट को इनवाइट करूं। उसके पहले मैं हमारे एक मित्र गौरांग जी जालान का धन्यवाद दूंगा, जिनके सहयोग से आज हम रघुहरी जी डालमिया जी को अपने चैम्बर में इनवाइट कर सके, उनके विचार सुन सके। गौरांग जी, आई थिंक यू आर ऑन द लाइन। गौरांग जी, गौरांग जालान। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा और मुझे खुशी है कि मैं इसमें योगदान कर पाया थोड़ा बहुत। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। मैं एक छोटी सी हमारे टेक्निकल टीम के साथ से हमारी प्रॉब्लम हो गई दिखती है कुछ टेक्निकल टीम में, तो हमारे कुछ मित्रगण आज इसके अंदर में शायद लॉगिन नहीं कर सके हैं। 100 की कैपिंग वाला पैकेज उन्होंने एक्टिवेट कर दिया इस प्रोग्राम के लिए, उसके कुछ मित्रगण जो पार्टिसिपेट नहीं कर सके, उनसे मैं माफ़ी चाहूँगा। आगे से मैं अपनी टेक्निकल टीम से इस सपोर्ट की आशा करता हूं कि वो थोड़ा ध्यान रखें। ये करके मैं अपने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राजीव जी को बोलना चाहूंगा कि वो फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स दें। राजीव। नमस्कार जी। श्री रघुहरी डालमिया जी, philanthropist and nationalist and ex-president Dalmia Cement Bharat Limited, colleagues at the Calcutta Chamber of Commerce, distinguished guests, ladies and gentlemen, राष्ट्र निर्माण या नेशन बिल्डिंग, उस पे आज जो वार्ता सुनी सबके लिए बहुत इंस्पिरेशन का विषय रहा है आज। So, but my vote of thanks is in English, so kindly excuse. Nation building seeks to create a strong national identity that recognizes the diversity and historical narratives of its entire people. When a nation is divided on ethnic, religious, and racial lines, there is always an unhealthy lingering of tensions and lack of cohesiveness for growth and development, as various groups become skeptical and resentful of each other. Nation building requires local people to be available to take over most of the tasks of the government. Therefore, the task of nation building must be a holistic one in embracing reforms that affect security, economic well-being, institutional development, and democracy. It must also include a commitment to transitional justice. Nation building must be seen as an evolutionary process with many complexities and entanglements, needing perseverance, dedication, and sustained vision by those partaking.
The ultimate goal is to establish stability and rebuild institutions that can in the long term produce a peaceful and functional society. People are the real wealth of a nation. Hence, the objective of nation building or development should be to create an enabling environment for people to enjoy long, healthy and creative lives. Human development is about sustaining positive outcomes steadily over time and combating processes that impoverish people to underpin oppression and structural injustice. Plural principles such as equity, sustainability, and respect for human rights are thus key. Honorable Shri Raghuvari Dalmia ji in his deliberations has assessed problems, challenges and difficulties and shortcomings India is facing and experiencing in the process of nation building, and how the emerging new Indian nation can achieve its aspirations and goal of nation building in the face of challenges from divergent religious, cultural, linguistic, caste, class, and religious groups and regional groups, and how the new state with its democratic, secular, and human rights objectives be able to build an inclusive and integrated social and political system. All of us in the chamber are very grateful to you, sir, for your invaluable presence and significant keynote speech. My sincere thanks to all the participants for their presence and active participation in the meeting. With these votes, I now propose a hearty vote of thanks to Honorable Shri Raghuvari ji Dalmia and request all of you to carry it with acclamation. Thank you all. बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू सर. थोड़ा हमारे यहाँ लाइट का प्रॉब्लम हो गया तो थोड़ा आई एम नॉट एबल, प्रोबेबली आई एम नॉट विजिबल प्रॉपरली, बट मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली. मैं कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों ने प्रदान करी. सर हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, आगे भी लेंगे. हमने समझ लिया है, हम आपको फ्यूचर में भी इनवाइट करेंगे. ये हमारे राजेंद्र जी राजा हैं, ये भी कई स्कूल्स देखते हैं, माहेश्वरी जी भी देखते हैं और कई सज्जन हैं हमारे जो स्कूल के एक्टिव हैं स्कूल में. थैंक यू वेरी मच सर. धन्यवाद सबका जिन्होंने. मेरा तो ये पैशन है सर, आप जब बुलाएंगे मैं आऊंगा. जरूर सर. नमस्कार जी. नमस्कार जी. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. Thank you very much, sir.